Programming languages are broadly categorized into low-level languages, which interact directly with hardware, and high-level languages, which are human-readable and abstract away hardware complexities. Beyond this primary division, they are further classified by their coding style or paradigm. Here is a breakdown of the primary types of programming languages. 1. Classification by abstraction level. 1. Machine language, the lowest level. Written in binary code, zeros and ones. Directly executed by the hardware without translation. 2. Assembly language, low-level language that uses short text commands, mnemonics, instead of raw numbers. Requires an assembler to run. And 3. High-level language, human-readable languages that use English-like syntax. Highly portable across different operating systems. Examples include Python and Java. 2. Classification by programming paradigm. A paradigm dictates how the logic of a program is structured and executed. Type, paradigm. Focus, style. Common examples. Procedural. Follows a step-by-step sequence of instructions or functions. C, Fortran, Pascal. Object-oriented, OOP. Groups data and behavior into reusable structures called objects. Java, C++, Python, C#. Functional. Treats execution as mathematical evaluations, data is strictly immutable. Haskell, Lisp, Erlang. Scripting. Designed to automate tasks and run inside another environment or browser. JavaScript, PHP, Bash, Ruby. Logic. Based on formal logic, specifies rules and facts rather than steps. Prolog, Datalog. 3. Classification by execution method. 1. Compiled languages. Code is fully translated into machine language by a compiler before execution. They run fast but take time to build. Examples include C++ and Go. 2. Interpreted languages. Code is read and executed line by an interpreter at runtime. They are highly flexible but often slower. Examples include Python and JavaScript. And 3. Hybrid languages. Code is compiled into an intermediate form, like bytecode, and then interpreted by a virtual machine. Examples include Java and C#. Are you looking to learn a specific language, or are you choosing one for a particular project, like web development, game design, or data science? प्रोग्रामिंग भाषाओं को मोटे तौर पर निम्न स्तरीय भाषाओं, जो सीधे हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करती हैं, और उच्च स्तरीय भाषाओं, जो मानव पठनीय होती हैं और हार्डवेयर की जटिलताओं को अमूर्त रूप में प्रस्तुत करती हैं, में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्राथमिक विभाजन के अलावा, इन्हें कोडिंग शैली या प्रतिमान के आधार पर भी आगे वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रमुख प्रकारों का विवरण दिया गया है। 1. अमूर्तता स्तर के आधार पर वर्गीकरण। 1. मशीन भाषा, सबसे निचला स्तर। बाइनरी कोड 0 और 1 में लिखी जाती है। हार्डवेयर द्वारा बिना अनुवाद के सीधे निष्पादित की जाती है। 2. असेंबली भाषा, निम्न स्तरीय भाषा जो कच्चे नंबरों के बजाय छोटे टेक्स्ट कमांड, स्मृति चिन्ह, का उपयोग करती है। इसे चलाने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। और 3. उच्च स्तरीय भाषा, मानव पठनीय भाषाएं जो अंग्रेजी जैसी वाक्य संरचना का उपयोग करती हैं। विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टमों पर आसानी से स्थानांतरित की जा सकती हैं। उदाहरणों में पाइथन और जावा शामिल हैं। 2. प्रोग्रामिंग प्रतिमान के आधार पर वर्गीकरण। एक प्रतिमान यह निर्धारित करता है कि किसी प्रोग्राम का तर्क कैसे संरचित और निष्पादित किया जाता है। प्रकार, प्रतिमान। फोकस, शैली। सामान्य उदाहरण। छोटी ई-आत्मिक। यह निर्देशों या कार्यों के चरण दर चरण अनुक्रम का अनुसरण करता है। सी, फोर्ट्रान, पास्कल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओओपी। ये डेटा और व्यवहार को ऑब्जेक्ट नामक पुनः प्रयोज्य संरचनाओं में समूहित करता है।
जावा, सी जोड़, पाइथन, सी हैश। कार्यात्मक निष्पादन को गणितीय मूल्यांकन के रूप में माना जाता है। डेटा पूरी तरह से अपरिवर्तनीय है। हास्केल, लिस्प, एरलैंग। स्क्रिप्टिंग कार्यों को स्वचालित करने और किसी अन्य वातावरण या ब्राउज़र के भीतर चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, बैश, रूबी। तर्क औपचारिक तर्क पर आधारित, ये चरणों के बजाय नियमों और तथ्यों को निर्दिष्ट करता है। प्रोलॉग, डेटालॉग। 3. निष्पादन विधि के आधार पर वर्गीकरण। 1. कंपाइल की गई भाषाएं। निष्पादन से पहले कोड को कंपाइलर द्वारा पूरी तरह से मशीन भाषा में अनुवादित किया जाता है। ये तेज गति से चलती हैं लेकिन इन्हें बनाने में समय लगता है। उदाहरणों में सी जोड़ और गो शामिल हैं। 2. व्याख्यात्मक भाषाएं। इनमें कोड को रनटाइम पर इंटरप्रेटर द्वारा पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा और निष्पादित किया जाता है। ये अत्यधिक लचीली होती हैं लेकिन अक्सर धीमी होती हैं। उदाहरणों में पाइथन और जावास्क्रिप्ट शामिल हैं। और 3. हाइब्रिड भाषाएं। कोड को एक मध्यवर्ती रूप, जैसे बाइट कोड, में संकलित किया जाता है और फिर एक वर्चुअल मशीन द्वारा व्याख्या की जाती है। उदाहरणों में जावा और सी हैश शामिल हैं। क्या आप कोई विशिष्ट भाषा सीखना चाहते हैं या आप किसी विशेष प्रोजेक्ट, जैसे वेब डेवलपमेंट, गेम डिज़ाइन या डेटा साइंस, के लिए कोई भाषा चुन रहे हैं?